Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll study about the October Revolution, what were the reasons and what was the result of this revolution. We continue with our second chapter only, which is all about socialism in Europe and the Russian Revolution. Before I start today's video, let me just give you a brief what we have done till now. अभी तक कहानी कहाँ तक पहुँची है? हमने देखा how did the socialism came in Europe, okay, how did the idea got famous, and then we have studied about the Russian Revolution, about the base के अंदर हमने क्या देखा, society कैसी है, economy कैसी है, what was the condition of people there, okay, and finally we have studied about the First World War कि किस किस के बीच में First World War हुआ और as a result उसका क्या रहा, and after that we have covered the February Revolution जिसका रिजल्ट क्या था कि जो मोनार्की थी फ्रॉम रशिया इट वाज रिमूव्ड एंड अ न्यू प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज सेट अप बाय द पीपल देयर. ओके, सो द किंग Tsar Nicholas II was finally abdicated and they had a new government which was the provisional government. किस किसने मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी? The army people and the demonstrators who were working here demonstrating and protesting during the February Revolution. Now let's see who were the people who were dominating this provisional government. अभी तक सिर्फ ये पढ़ा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है, ओके, तो अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन लोग ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे. ओके, सो वी हैव द आर्मी ऑफिशियल्स, द लैंड ओनर्स, द लिबरल्स एंड द सोशलिस्ट. सब लोगों ने मिलके एक साथ हाथ ज्वाइन कर लिए थे. दे वर नाउ ऑल टुगेदर वन पार्टी एंड वर अगेंस्ट Tsar Nicholas II. तो बेसिकली तो जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, दिस गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय ऑल दिस पीपल. ओके, सो वी आर स्टडिंग राइट नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. ओके, दिस इज आवर मेन टॉपिक. विल सी द प्रोविजनल गवर्नमेंट आई रशिया में, व्हाट ऑल द चेंजेस हैपेंड देयर. Okay, and the major twist in the story which will lead to the October Revolution, okay, which is again a very important part in Russian Revolution. Starting में when I was giving you the introduction of this chapter, I have told you about the Russian Revolution. We have two major incidents in this. One was February Revolution and other is the October Revolution. Okay, February Revolution we have already done. Now in this video we'll be seeing what happened, that there happened another revolution which was called the October Revolution, what it was and what was the result of the revolution. Okay, so let's see after February Revolution what happened. So as we all know, Tsar Nicholas has put up the restrictions on public meetings and no political parties were allowed. Okay, नहीं बनाने देता था, illegal थी. Therefore, all those restrictions were removed after the February Revolution. Restrictions on the public meetings and making of associations were removed. Okay, and we have also seen that Soviet or councils like Petrograd were made everywhere. Petrograd जैसे सोवियत या काउंसिल बहुत जगह नई नई काउंसिल बनके तैयार हो रही थी. Okay, so this is the time of 1917. अभी तक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, फेब के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल में देयर कम्स द ट्विस्ट. क्या ट्विस्ट है? अप्रैल 1917 के अंदर बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल. एग्जाइल क्या है? तब जैसे एग्जाइल इज द वर्ड जिसको वनवास पे भेज देते थे. सिमिलरली व्लादिमीर लेनिन was staying out of their nation. रशियन एम्पायर से बाहर रहते थे क्योंकि he was a very outspoken person and Tsar Nicholas did not like him at all. तो उन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए थे कि जैसे आपको दिखाई देते हैं लेनिन, उनको इम्प्रिजन कर देना. Therefore, अब व्लादिमीर लेनिन को पता चलता है कि Tsar Nicholas का रूल खत्म हुआ and now he finally returned back to the Russian Empire in April 1917. Okay, so अब लेनिन आएंगे. लेनिन कौन थे? बोल्शेविक लीडर थे. हमने पढ़ा था ना कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन वाज बोल्शेविक मेजॉरिटीज पार्टी एंड अदर वाज मेंशेविक व्हिच वाज द पार्टी ऑफ द माइनॉरिटी. ओके, एंड बोल्शेविक्स क्या बिलीव करते थे?
लेनिन ने क्या बोला था कि जो वर्कर क्लास है वो रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगी. ओके, दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन टू रिमाइंड यू ऑल हु वाज दिस लेनिन. आई होप यू आर एबल टू रिमाइंड. नाउ लेट्स टेक द स्टोरी अहेड. अब लेनिन तब सीन में वापस आएंगे जब ये रशिया रिटर्न होते हैं अप्रैल 1917 में. उन्होंने आके क्या बोला? ही बिलीव दैट इट्स टाइम फॉर द सोवियट्स टू टेक ओवर द पावर. उन्होंने बोला इट्स द राइट टाइम व्हेन द काउंसिल और द सोवियत शुड टेक ओवर द पावर इंस्टेड ऑफ दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट. जो तुमने टाइम पीरियड के लिए जो गवर्नमेंट बनाई है उसको खत्म करो एंड द पावर शुड बी हैंडेड ओवर टू द सोवियत. ओके, नाउ इसके दौरान उन्होंने 3 मेजर बात बोली थी. दैट विल स्टडी इन हिज अप्रैल थीसिस. अप्रैल थीसिस ऑफ व्लादिमीर लेनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि व्हाट वाज दिस अप्रैल थीसिस और हु गेव द अप्रैल थीसिस. ओके, सो नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट दिस मेजर वर्क बाय लेनिन व्हिच वाज कॉल्ड द अप्रैल थीसिस. नाउ लेट्स डिस्कस what was Lenin's April thesis. Okay guys, again I am repeating, this is very important. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. बेसिकली अप्रैल थीसिस के अंदर 3 मेजर डिमांड्स की बात करता है लेनिन जो उसने पुट फॉरवर्ड की थी उस टाइम पे. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वर द 3 डिमांड्स मेड बाय लेनिन. सो नंबर 1 डिमांड ऑफ लेनिन वाज द वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड. उसने बोला कि जो अभी वॉर चल रहा है इसको ख़त्म करना चाहिए. मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, 1914 टू 1918. लेकिन रशिया 1917 में ही विड्रॉ कर लेगा अपने आप को. ओके, सो अभी हम देखेंगे कि क्या रीजन है. एक तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हमारा रीजन, दूसरा अक्टूबर रेवोल्यूशन रहेगा, इसलिए रशिया 1917 में ही विड्रॉ कर लेता है. तो पहली डिमांड लेनिन ने क्या पुट की थी कि जो वॉर चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए. Okay, the war should be brought to an end. Coming to the second demand of Lenin, it was land to be transferred to the peasants. उसने बोला जो जमीन है, जो लैंड है, उसको पीजेंट्स को दे देना चाहिए, फार्मर्स को दे देना चाहिए, क्योंकि ये फार्मर्स का ही राइट है लैंड के ऊपर. ओके, एंड द थर्ड डिमांड वाज द बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड. जितने भी बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज्ड कर दो. ओके, सो आफ्टर studying the 3 major demands of Lenin which comprises the April thesis, apart from that he now also argued to rename the Bolshevik party. उसने बोला it's the time we should rename the Bolshevik party as the Communist party. Now you must be thinking why? क्योंकि लेनिन इतने टाइम बाद फ्रॉम एग्जाइल ही हैज रिटर्न टू रशियन एम्पायर. ओके, इससे पहले तो बनवास काटने की तरह था, वो दूसरे नेशंस में जाके ही वाज रिसाइडिंग. अब इतने टाइम बाद लेनिन वापस आए थे, उन्होंने आके अपनी डिमांड्स रखी. उन्होंने बोला कि सोचा कि अगर डिमांड्स नहीं है तो क्यों ना पार्टी का भी नाम नया हो. ओके, इसलिए उन्होंने बोला, आर्ग्यू किया कि हमें बोल्शेविक पार्टी का नेम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए. Now, so basically changing the party's name, it in order to indicate the new radical aims. Okay, जब हमने पढ़ा था काफी सारे लोगों के बारे में, कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे. ओके, जब हमने पढ़ा था ना, आई होप यू रिमेंबर ऑल द आइडियोलॉजी. तो सिमिलरली इन्होंने तब लेनिन ने बोला कि आके मेरी नई डिमांड से नई सोच है तो क्यों ना पार्टी की भी नया नाम रख दिया जाए और इससे क्या होगा, न्यू रेडिकल एम दिखाई देंगे. ओके, नाउ अगर आप इन लेनिन की तीनों डिमांड को अगर रिलेट करो, कनेक्ट करो टू दैट ऑफ द कार्ल मार्क्स, आइडिया सेम ही है सारा. कार्ल मार्क्स ने भी क्या बोला था कि वर्कर्स को ओवरथ्रो करना चाहिए कैपिटलिस्टिक रूल ताकि एक इक्विटेबल सोसाइटी सेटअप हो सके. उन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में बात की थी. सिमिलर ग्राउंड पे लेनिन भी यहाँ वही बात कर रहा है. सेम बात इससे भी बोली कि लैंड को ट्रांसफर कर देना चाहिए. ओके, आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट टू द आइडिया. नाउ हाउएवर ऑन दिस पॉइंट, चेंजिंग द पार्टीज नेम, many other members of Bolshevik parties were surprised by the April thesis. तब April thesis दे उन्होंने डिमांड रखी अपनी और फिर बोला कि पार्टी का नेम भी चेंज कर देना चाहिए. जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे, they were surprised.
व्हाट इज लेनिन अप टू? अभी बड़ी मुश्किल से राजा को हटाया गया है यहाँ से, राइट? अभी अच्छी प्रोविजनल गवर्नमेंट आई है और एकदम से लेनिन आते हैं सीन में एंड अगेन ही हैज पुट फॉरवर्ड दीज डिफरेंट डिमांड्स। इसके पीछे का क्या मोटिव है? तो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड बाय हिज अप्रैल थीसिस। So now let's see what made the members so surprised about the Lenin's decision. Okay, so Bolshevik party members thought that it was not the right time for the socialist revolution and the provisional government should be supported. उन्होंने सोचा लेनिन जो डिमांड कर रहा है कि सोवियत को सारी पावर दे देनी चाहिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी तो राजा के रूल से हमें छुटकारा मिला है, अभी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आई है, लेट्स सपोर्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट देम एंड लेट्स वेट एंड होप फॉर द बेटर टाइम्स कि प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। ओके, इसलिए जो पार्टी मेंबर्स थे लेनिन के साथ वो उनके आइडियाज मैच नहीं कर रहे थे। ओके, बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर माइंडसेट। फिर ऐसा क्या होगा कि इन बिटवीन दिस मंथ्स, अप्रैल की बात कर रहे हैं हम, तब आके उसने डिमांड रखी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में ऐसा क्या हो जाएगा कि इनके जो पार्टी मेंबर्स हैं उनके भी ख्याल चेंज हो जाएंगे और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अक्टूबर रेवोल्यूशन आएगा। ओके, तो हम देखते हैं ऐसा क्या हुआ जिससे उनके माइंडसेट चेंज हुआ। नाउ लेट्स सी द रीजन फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन के क्या रीजन थे उसका बेस देखते हैं। क्यों अक्टूबर रेवोल्यूशन आएगा, क्यों इन महीनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टी मेंबर्स थे बोल्शेविक पार्टी मेंबर्स, उन्होंने अग्री किया कि एक रेवोल्यूशन आए। ओके, now number one reason was the worker movement grew, trade unions and factory associations started increasing. Okay, वर्कर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी, अब पब्लिक गैदरिंग भी हो सकती थी और एसोसिएशन भी बन सकती थी। इससे क्या हुआ हम देखेंगे कि जो वर्कर्स मूवमेंट होगी यहाँ वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, वर्कर्स बहुत ज़्यादा खुल के अपनी डिमांड्स रखने लगेंगे, ट्रेड यूनियंस बनेंगी, फैक्ट्री एसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगी। तो तब ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री एसोसिएशन बहुत ज़्यादा बननी स्टार्ट हो गई। सो द पीपल और द वर्कर्स नाउ स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट। बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे थे वहाँ, उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। सेकेंड रीजन फॉर द अक्टूबर रेवोल्यूशन वॉज द सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन आर्मी। हमने देखा कि पहले जो आर्मी थी इट वॉज अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द किंग। अब किंग ही नहीं था तो आर्मी भी इंडिपेंडेंट थी। यहाँ क्या होगा कि आर्मी के अंदर भी सोल्जर कमिटीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। एक जगह वर्कर्स कमिटी बन रही है, दूसरी जगह सोल्जर कमिटी बन रही है। ओके, तो ऑब्वियस है अलग अलग कमिटीज बन रही है, सब कमिटीज के अलग आइडियाज रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो ऑब्वियस ही है। ओके, एंड इन जून व्हाट हैपेंड, जून के अंदर क्या होगा कि सोवियत, बहुत ज्यादा सोवियत जो बनी हुई थी, जो एक सोवियत थी पेट्रोग्रेड वाली, सोवियत विल सेंड द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर एंड ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत। सोवियत मिलके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेगी और बोलेगी इंस्टेड ऑफ मेकिंग डिफरेंट काउंसिल ऑफ सोवियत, लेट्स कंबाइन ऑल टुगेदर एंड मेक वन रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। एक नई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन निकल के आएगा विच वॉज रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। So all this was happening. Okay, we are basically studying the reasons for October Revolution. कि सब जगह ट्रेड यूनियंस बन रही थी, वर्कर यूनियंस बन रही थी, आर्मी में यूनियंस बन रही थी, ये सब चीजें होंगी। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी क्या वो खुश होगी इन सब चीजों से? नो। व्हाई? क्योंकि अब उनको लगेगा कि इट्स द टाइम जब उनके हाथ से पावर चली जाएगी। देयरफॉर उन्होंने क्या देखा, वो क्यों खुश नहीं थे? एक तो अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कौन अपनी पावर देना चाहेगा? दूसरा, they saw that all this was seen as the growing support for Bolsheviks to take the power against the provisional government. उन्होंने क्या सोचा, अगर ये मूवमेंट ऐसे ही चलती रही, लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे बोल्शेविक्स को, लेनिन की पार्टी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, तो एक दिन आएगा कि लेनिन यहाँ का लीडर बन जाएगा और प्रोविजनल गवर्नमेंट का रूल खत्म हो जाएगा। ओके, एंड
In order to control all of this, what was happening in Russia, the provisional government took several steps. अब हम देखेंगे उन्होंने क्या steps लिए इन सारी activities को stop करने के लिए. The provisional government, in order to control the workers, they now started arresting their leaders. उन्होंने सोचा अगर इन सारी movements को control करना है तो why not इनके leaders को arrest कर लें तो सारी movement ही suppress हो जाएगी. Similarly, the demonstrators were staged by the Bolshevik were sternly suppressed. Similarly, उन्होंने demonstrators के साथ किया और जितने भी Bolshevik leaders थे उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन the Bolshevik party was sternly suppressed. Sternly suppressed मतलब ज़्यादा हद तक कंट्रोल नहीं कर पाए थे उस पार्टी को. Why? Because the leaders of the Bolshevik party were hiding. कुछ लीडर्स ऐसे थे जो बैक फुट पे खेल रहे थे और कुछ लोग छुपे हुए थे और कुछ लोग वहां से भाग गए. Therefore, बोल्शेविक पार्टी को पूरी तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए. Therefore, it is written as Bolshevik was sternly suppressed. Okay, so it was the condition of the city. Now let's see how was the situation in countryside. रूरल एरिया में, कंट्री साइड में क्या सिचुएशन थी, वहां क्या हो रहा था. पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स जो कि कंट्री साइड में प्रेजेंट थे, उन्होंने बोला कि लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जो कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में बोला था कि लैंड को पीजेंट्स को दे देना चाहिए. सिमिलरली अब पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी भी इकट्ठे हो गए. उन्होंने डिमांड रखी कि लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो और इसके चलते वेरियस लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड. लैंड कमिटी बननी स्टार्ट होगी, जैसे वर्कर कमिटी थी और आर्मी कमिटी थी. रूरल साइड में ऐसे लैंड कमिटी बननी स्टार्ट हुई. अब लैंड कमिटी ने क्या करना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड सीजिंग द लैंड्स फ्रॉम बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर इन 1917. उन्होंने जाके लैंड पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, लैंड को सीज करना शुरू कर दिया जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. अब हमने ये सब रीजंस पढ़े हैं. ऑल दिस रीजन से आपको समझ में आया होगा कि अब एक बेस तैयार हो गया है नेक्स्ट रेवोल्यूशन के लिए. कैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना रूल कायम करने के लिए, हाउ इट वाज ट्राइंग टू कंट्रोल द पीपल देयर. लोगों ने सोचा प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बिल्कुल एज इट इज ऑल द वे सिमिलर किस जैसी है, मोनार्की रूल जैसी, अपने रूल चलाने के लिए कुछ भी हद तक ये जा रही है. Therefore, now the ground for the October Revolution was ready. Now let's see what was this October Revolution. So we have now, till now we have seen what formed the base for the October Revolution. Okay, now let's see what was this revolution all about. October Revolution भी 1917 में ही हुआ. इससे कुछ महीने पहले हमारा February Revolution हुआ था. अब हम देखेंगे the conflict between the provisional government and the Bolshevik party will grew, and the attitude of the provisional government feared Lenin that they may set up a dictatorship. मतलब अब आने वाले टाइम में, क्योंकि हर जगह एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, वर्कर्स की अलग बन रही थी, आर्मी में अलग कमिटीज बन रही थी, सिटीज में ये सब सीन था, तो हमने कंट्री साइड देखा कि वहां भी पीजेंट्स की कमिटी बन रही थी. ओके, एंड इन ऑर्डर टू सप्रेस ऑल दिस मूवमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लीडर्स को अरेस्ट करवाना स्टार्ट कर दिया था, राइट. तो इसके चलते जो कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद जो था प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी में, तनाव बढ़ता जा रहा था. ओके, एंड लुकिंग एट द एटीट्यूड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, तब उसके ये एटीट्यूड देखा कि ये गवर्नमेंट अपना रूल चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जैसे कि वो लोगों को अरेस्ट कर रही थी, राइट. तो लेनिन को डर लगा कहीं फिर से एक डिक्टेटरशिप तो नहीं आ जाएगी, कहीं डिक्टेटरशिप तो नहीं आ जाएगी, लाइक इट वाज इन द केस ऑफ द किंग. भाई अपने ही चलाने वाले अपने रूल को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक कोई डिसीजन ले सकता है, वेदर राइट और रॉन्ग. इस चीज को चलते लेनिन ने काफी सोचा, एंड ही थॉट दिस वाज द टाइम फॉर अनदर रेवोल्यूशन व्हिच वाज द अक्टूबर रेवोल्यूशन, एंड दिस वाज द राइट टाइम that he need to bring the people together again for a big revolution and save their nation from another dictatorship. Okay, किसकी थी another dictatorship यहाँ, provisional government की.
Okay, therefore, with the Bolshevik supporters in army, Soviet factory workers, they started planning against the provisional government. लेनिन ने क्या किया, बोल्शेविक के जितने भी सपोर्टर्स थे, पार्टी सपोर्टर्स थे, उनके साथ प्लस जितने आर्मी में सपोर्टर्स थे, जितने काउंसिल में सपोर्टर थे, जितने फैक्ट्री वर्कर्स सपोर्टर्स थे, उन सबको मिलाया और उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये सोच के कि कैसे इनकी डिक्टेटरशिप से छुटकारा पाया जा सकता है. ओके, Lenin even persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik agreed to a socialist seizure of power. By this line I mean, लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को भी मना लिया कि आके हमें ज्वाइन करो. पेट्रोग्रेड सोवियत कौन है? जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ड्यूरिंग फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. इन लोगों को भी मना लिया और अपने साथ जोड़ लिया. नाउ जब हमने पहले पढ़ा था कि बोल्शेविक जो पार्टी मेंबर्स हैं वो अग्री नहीं कर रहे थे लेनिन के साथ, और कुछ ऐसा होगा कुछ महीनों में कि एंड में हम देखेंगे कि बोल्शेविक पार्टी वर्कर्स और मेंबर्स विल आल्सो अग्री भी पावर चेंज होना चाहिए. ठीक है, तो ये वही टाइम है तब बोल्शेविक जो पार्टी मेंबर्स हैं वो अग्री करेंगे कि सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर होना चाहिए, कि इट्स द टाइम व्हेन द पावर शुड बी हैंडेड ओवर टू द सोवियत पीपल. ओके, ये सब प्लानिंग चल रही थी. इस प्लानिंग के दौरान हमने देखा कि बोल्शेविक के सपोर्टर्स के अंदर आर्मी सपोर्टर्स भी थे ना उनके. तो अब क्या होगा, एन अपॉइंटमेंट ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी विल बी मेड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज दिस सीजर. मतलब एक अपॉइंटमेंट करेंगे किस चीज की, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी की, और इसको कौन हेड करेगा, लियोन ट्रोट्स्की. और ये प्लान करेंगे भी कैसे पावर को प्रोविजनल गवर्नमेंट से छीना जाए और कैसे रेवोल्यूशन की तैयारी की जाए, कैसे रेवोल्यूशन लाया जाए. ओके, एंड द डेट ऑफ द अपराइजिंग वाज केप्ट सीक्रेट. ये सब जो प्लानिंग चल रही थी लेनिन की इन सब लोगों के साथ, तो ये अभी डेट जो है वो सीक्रेट ही रखी गई थी भी कब हम खुल के सबके सामने आएंगे. नाउ लेट्स सी, दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन. Now let's see what was October Revolution और क्या होगा अब आगे. Now we have studied कि अभी तक अपराइजिंग की डेट नहीं थी. ओके, अब हम देखेंगे, कहानी को आगे लेके चलते हैं कि अपराइजिंग होना स्टार्ट होगी. ओके, सो द अपराइजिंग विल बिगेन ऑन 24 अक्टूबर. और ये कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ लेनिन नहीं फाइट कर रहे हैं, लेनिन ने पूरी प्लानिंग करी है मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, और उन्होंने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई थी जो मैंने अभी आपको बताया था. अब सारा जो एक्शन है कौन इंप्लीमेंट करेगा, दिस मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी. ओके, अब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑन 24 अक्टूबर क्या करती है, जाके सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज कर लेती है. जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको जाके अपने अंडर अरेस्ट कर लेती है, और जितने भी मिनिस्टर्स थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के उनको भी अरेस्ट कर लेती है. ओके, नाउ क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर थे ये, ओके, आर्मी वाले थे, तो उनको प्लानिंग पता थी कि कैसे करना है और कैसे एग्जीक्यूट करा जाएगा प्लान. तो उन्होंने क्या किया, हमने मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक रिवर नेवा थी जो सिटी को इनटू 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती थी, पेट्रोग्राड को. राइट, एक साइड तो हमारे विंटर पैलेस था, अदर साइड पे हमारे क्या थे, वर्कर्स थे. ओके, तो अब इन्होंने इनकी प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने क्या किया, शिप अरोरा को रिवर नेवा के अंदर लेके आए, वहाँ इन्होंने इसको लाके प्लेस किया, शिप अरोरा के थ्रू आए और आके इन्होंने विंटर पैलेस, क्योंकि एक रिवर ही तो थी जो सिटी को डिवाइड करी थी, शिप अरोरा के थ्रू आए, आके इन्होंने विंटर पैलेस को सीज करा, और जो हमारे गवर्नमेंट के मेजर मिलिट्री पॉइंट्स थे जहाँ से गवर्नमेंट के अंडर जो मिलिट्री आती थी, कुछ पार्ट ऑफ मिलिट्री जो उनकी सिक्योरिटी के लिए थी, उन सारे पॉइंट्स को उन्होंने सीज करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी एक्शन ना ले पाए वो लोग. ओके, एंड बाय द नाइट द सिटी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ कमिटी. कमिटी का प्लान इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लान था कि ओवरनाइट द कमिटी वाज सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द होल सिटी. पूरे सिटी के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया था. अब एक साइड तो जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी है वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रही है, इसके चलते साइड बाय साइड क्या हुआ,
सेंसिंग द ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की समन्ड द ट्रूप्स। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो हेड थे, जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे, ओके, उनके हेड जो थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, ही वाज प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की। इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो घपला चल रहा है, पर ये नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो उनको लगा कि कुछ मेजर होने वाला है यहाँ, इसलिए उन्होंने अपने ट्रूप्स को बोला जाओ एंड कंट्रोल द सिचुएशन। और जितने भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए लॉयल पीपल थे, जो मिलिट्री में, जो गवर्नमेंट की खुद की मिलिट्री थी, जो उनको सिक्योरिटी पर्पस से उन्होंने बनाई हुई थी, उसके अंदर जितने भी लॉयल लोग थे, हु वर लॉयल टू प्रोविजनल गवर्नमेंट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की का ऑर्डर माना और जाके उन्होंने बिल्डिंग सीज करना, बिल्डिंग को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। किन की बिल्डिंग्स को? बोल्शेविक की बिल्डिंग्स। उन्होंने 2 मेजर बिल्डिंग ऑफ बोल्शेविक की कैप्चर की, जहां से बोल्शेविक अपने न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे। उन्होंने 2 बिल्डिंग्स कैप्चर कर ली। उसके साथ ही एंड ऑल्सो दे कैप्चर्ड द टेलीफोन एंड द टेलीग्राफी ऑफिस। टेलीफोन और टेलीग्राफी ऑफिस जितने थे उसको भी गवर्नमेंट ट्रूप्स ने कैप्चर कर लिया, ताकि कोई भी अपने इंफॉर्मेशन लीक ना कर सके। ये तो थी प्रोविजनल गवर्नमेंट की साइड, बट ऑल ऑफ दिस एक्शन वाज ऑफ नो यूज। कोई फायदा नहीं था इस सब चीज का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता है कि मेजर प्लान जो था मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी अपना एग्जीक्यूट कर चुकी है, एंड बाय नाउ the city was totally under the control of the military revolutionary committee. Okay, तो ये सब चीज जो प्राइम मिनिस्टर ने करवाई, दिस वाज ऑफ नो यूज। अब हम क्या देखेंगे? बोल्शेविक एक्शन वाज अप्रूव्ड बाय सोवियत। अब जो मैंने आपको बताया था, एक सारी जो अराउंड 500 सोवियत जो काउंसिल थी, ऑल टुगेदर मिलके उन्होंने ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत बना ली थी। ये जो एक्शन था, जो मिलिट्री का एक्शन था, इसको इस ऑल रशियन कांग्रेस कमेटी ने अप्रूव कर दिया। बोला बहुत सही किया कि तुमने जाके प्रोविजनल गवर्नमेंट को बिल्कुल खत्म कर लिया और कंट्रोल कर लिया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अक्टूबर रेवोल्यूशन। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यू गवर्नमेंट आती है उधर और बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट आएगी। ओके, नाउ द फाइट डज नॉट एंड हियर। देयर वर मोर फाइट्स इन द मॉस्को रीजन, बट बाय दिसंबर। लेकिन ये सब अक्टूबर का चल रहा है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लड़ाई हुई, जो भी झगड़े चल रहे थे वो कंटिन्यू हुए और दिसंबर तक कंटिन्यू हुए। पर दिसंबर में जाके फाइनली बोल्शेविक्स विल कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। ओके, तो बोल्शेविक बेसिकली पूरी सिटी को कंट्रोल कर लेंगे और बोल्शेविक्स की वहाँ रूल आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अक्टूबर रेवोल्यूशन। जस्ट अ क्विक रिविजन बिफोर वी मूव अहेड। क्या हुआ? हमने फाइनल अपराइजिंग देखी, कब हुई? 24 अक्टूबर को। इसके अंदर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो बनाई गई थी, ओके, उन्होंने जाके सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। एक शिप, जो शिप अरोरा है, उसके थ्रू वो जाके रिवर नेवा में आते हैं और वहाँ से वो जाके विंटर पैलेस को कैप्चर कर लेते हैं और मेजर मिलिट्री पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, और ऐसे उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और बाय नाइट दे वर सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द एंटायर सिटी। जबकि प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, जो उनके हेड थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उन्होंने कुछ एक्शन लिया, लेकिन वो एक्शन कोई काम का नहीं था, क्योंकि तब तक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपना प्लान एग्जीक्यूट कर चुकी थी, पूरी सिटी को कंट्रोल कर चुकी थी। फिर बोल्शेविक के जो एक्शन है, सबने प्रेज किया कि बहुत अच्छा किया कि तुमने एक अनदर डिक्टेटर को आने से रोका, और ये फाइट चलती रहेगी दिसंबर मंथ तक, और फाइनली इन दिसंबर बोल्शेविक पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेंगे और बोल्शेविक की पार्टी आ जाएगी रूल के अंदर। So this was all about October Revolution. Now the next question arises, what changed after October Revolution? भाई October Revolution के बाद क्या changes आए रशिया में? Okay, so number one thing will be the implementation of April Thesis. April Thesis जो लेनिन के थे वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, वो लागू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेन ब्रेन गेम किसका था इसके पीछे? लेनिन का ही था, सब लोगों को एक साथ लाना और चीजें, डिक्टेटरशिप और प्रोविजनल गवर्नमेंट का रूल खत्म करना। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रैल थीसिस होंगे। इसके चलते जो 3 मेजर डिमांड थी अप्रैल थीसिस की, वो भी फुलफिल होंगी ऑटोमेटिकली।
change was the banks were nationalized in November 1917. This is very important, 1 मार्कर में आता है रशिया के अंदर बैंक्स कब नेशनलाइज हुए थे. सो आंसर इज नवंबर 1917. ओके, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? जितने भी बैंक्स हैं नेशन में वो किसके अंडर आ जाएंगे? अंडर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार ही चलाएगी, पब्लिक बन जाएंगे वो. पब्लिक मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. ओके, so number one thing was banks were nationalized in November 1917. Secondly, the peasants took over the land. जो सेकेंड हमने कंडीशन क्या थी? लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करो. वही हुआ, पीजेंट्स को जमीनें दे दी गई, नोबिलिटी से लैंड ली गई और पीजेंट्स को दे दी गई. ओके, एंड थर्डली व्हाट हैपेंड? द लार्ज हाउसेस वर पार्टीशन्ड. जो बड़े बड़े घर थे, मकान थे उस टाइम पे, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, उन लार्ज हाउसेस को उन्होंने डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया और लोगों को यूज के लिए दे दिया. ओके, अनदर मेजर थिंग वाज द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वाज बैंड. जो पुराने नामी लोग जो टाइटल यूज करते थे, उन टाइटल को सबको बैन कर दिया और बोला कि ऑल आर इक्वल नाउ. कोई अबव नहीं है, कोई बिलो नहीं है, कोई रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट इतना कुछ नहीं है. एवरीबडी इज इक्वल. तुम्हें जो पुरानी एरिस्टोक्रेसी थी, जो पुराने रिच पीपल थे, जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे, उनको वो सब खत्म कर दिए, उनके टाइटल्स खत्म कर दिए, उनको कोई टाइटल से नहीं बुलाएगा. एंड एवरीवन वाज इक्वल नाउ. एंड लास्टली, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड फॉर आर्मी एंड द ऑफिशियल्स. उन्होंने न्यू यूनिफॉर्म बनाई. वाई? इन ऑर्डर टू मेक द चेंज विजिबल. भाई चेंज आया है, मेजर चेंज आया है यहाँ, तो वो दिखना चाहिए. तो उन्होंने पुरानी जितनी यूनिफॉर्म थी आर्मी की या ऑफिशियल्स की, उसको हटा दिया, नई यूनिफॉर्म बनाई, बिकॉज इट वॉज ऑल ओवर अ न्यू रशिया. ओके, सो व्हाट वाज द चेंजेस? Majorly what happened after October Revolution? It was the implementation of April Thesis. Along with that, new uniforms were designed, plus the large houses were partitioned and old titles of aristocracy were banned. Now you must be thinking, implementation of April Thesis के अंदर जो मेजर उसने लेनिन ने एक डिमांड रखी थी वो तो कहीं आई नहीं है. तो अभी हम उसी डिमांड की बात करेंगे कि वो मेजर डिमांड फुलफिल हुई कि नहीं हुई. आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी डिमांड की बात कर रही हूँ. लेट मी टेल यू विच डिमांड आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट रीनेमिंग द बोल्शेविक पार्टी. Okay, and finally the time came when the Bolshevik party was renamed as Russian Communist Party. यही तो लेनिन ने बोला था कि हमें नया रेडिकल एम दिखाना है, रेडिकल चेंज दिखाना है कि चेंज आया है, इसलिए हमें बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रखना होगा. तो उस टाइम पे लोग अग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर रेवोल्यूशन आया, वो लोग रूल में आए, तो अब मेजर चेंज भी हुआ, उनकी पार्टी को रीनेम किया गया and it was renamed as Russian Communist Party. So you must be thinking the condition must. आप सोच रहे होंगे कि सब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है. नो, अगर कोई भी रेवोल्यूशन आएगा तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, एवरीथिंग टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड टू सेटल डाउन. ओके, देयरफॉर कुछ प्रॉब्लम्स भी रही. लेट्स सी व्हाट वर द प्रॉब्लम्स. सो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स हियर? इन नवंबर 1917 The election to Constituent Assembly by Bolshevik happened. उन्होंने नवंबर 1917 में इलेक्शन कंडक्ट किए और बोला कि हम एक इलेक्शन के थ्रू न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चूज करेंगे. बट इसका रिजल्ट क्या निकला इलेक्शन का? दे फेल टू गेट द मेजर सपोर्ट. बोल्शेविक पार्टी को लोगों ने नहीं चुना, उनको सपोर्ट नहीं मिला. ओके, देयरफॉर इन जनवरी 1918 the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. तो असेंबली नहीं चूज हो पाई, वो लोग नहीं इलेक्शन में जीत पाए. तो जनवरी 1918 में बोल्शेविक के जो लीडर थे लेनिन ने, इसने ये पार्टी को डिसमिस कर दिया, इस असेंबली को डिसमिस कर दिया. नॉट पार्टी बट द असेंबली वाज डिसमिस्ड बाय द लेनिन. उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन हमने कंडक्ट किए, क्या रीजन दिया डिसमिस करने का? कि बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी नहीं मिली. तो अब लेनिन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्होंने डिसमिस कर दिया. एंड रीज़न क्या दिया? ही आर्ग्यूड दैट द असेंबली वाज इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन. भाई
ये जो इलेक्शन जो हुए हैं असेंबली के, ये बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन कंडीशन के टाइम हुए हैं। मतलब अभी क्योंकि पूरा पीस नहीं आया है रशिया में, कंडीशन नॉर्मल नहीं हुई है, एंड इससे बेटर तो हमारी रशियन कांग्रेस सोवियत है, क्योंकि वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है नेचर में। ओके, रशियन कांग्रेस सोवियत कौन सी सोवियत है? जो अराउंड 500 जो काउंसिल्स थी, जो सोवियत थी, जिन्होंने मिलके एक कांग्रेस सोवियत बनाई थी। मैंने बताया ना अभी स्टार्टिंग में, तो उन्होंने, लेनिन ने किसको प्रेस किया? इससे अच्छा तो रशियन कांग्रेस सोवियत है, क्योंकि वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। अब आगे देखते हैं स्टोरी क्या कैसे टर्न करती है और आगे रशिया में अब क्या होगा। नाउ डिस्पाइट द ओपोजिशन इन मार्च 1918, आप देख रहे हो कि 1917 में अराउंड अक्टूबर में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फिर इलेक्शन होते हैं, अब जैन में भी पार्टी डिसॉल्व कर देता है लेनिन आके, ठीक है। अब आ जाता है टाइम मार्च 1918 का। चाहे बोल्शेविक पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं मिला था कि वो मेजॉरिटी सपोर्ट हो उनके पास लोगों का और वो कुछ भी कर सकें, ओपोजिशन के चलते हुए भी मार्च 1918 में बोल्शेविक्स क्या करते हैं? दे गो एंड मेड पीस विद द जर्मनी। जर्मनी, याद करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनके साथ नहीं बनती थी रशिया की, जर्मनी के साथ, राइट? जर्मनी के साथ नहीं बनती थी। और हमने देखा था कि जो अप्रैल थीसिस थी उसकी वेरी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? द वॉर शुड ब्रॉट टू एन एंड, है ना भाई, वॉर को खत्म करो। तो देयरफॉर बोल्शेविक्स ने क्या किया मार्च 1918 में? उन्होंने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की। कहाँ पे? ब्रेस्ट लिटोस करके एक प्लेस है, उधर उन्होंने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली। ओके, नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाएगा कि रशिया अब एक वन पार्टी स्टेट बन गया था। वन पार्टी स्टेट मतलब एक ही मेजर पार्टी रहेगी अब रशिया के अंदर। नाउ कंटिन्यूइंग अहेड विद द स्टोरी, अभी तक हमने क्या देखा कि जर्मनी के साथ इन्होंने पीस बना लिया है, दो अभी भी उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। अब क्या होगा? जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उनको बोल्शेविक्स ने अपने कंट्रोल के अंदर रखा हुआ था और एक सीक्रेट पुलिस सिस्टम बनाया हुआ था। ओके, चेका फर्स्ट, एनकेयूडी, ओजीपीयू, दीज आर दी सीक्रेट पुलिस। ओके, ये इनका क्या काम था? ये उन लोगों को पनिश करती थी, उन लोगों को अरेस्ट करके या पनिशमेंट देती थी जो कोई भी बोल्शेविक पार्टी की क्रिटिसिज्म करता था, निंदा करता था या बुराई करता था। ओके, तो अब आप देख रहे हो कि बोल्शेविक्स भी किस बात पे चल रहे हैं? एक डिक्टेटरशिप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर बोल्शेविक्स ने भी पुराना रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सीक्रेट पुलिस को हायर किया हुआ है, ट्रेड यूनियंस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, और ये किसको पनिश करते हैं? जो लोग भी बोल्शेविक्स के अगेंस्ट जाते हैं। ओके, सो ऑल दिस स्टेप्स वर टेकन बाय बोल्शेविक पार्टी एंड दिस वाज नाउ क्रिएटिंग द टेंशन अमंग द रशियन सोसाइटी। अब रशियन सोसाइटी में एक नई टेंशन आ गई कि अब बोल्शेविक पार्टी भी ऐसा करना स्टार्ट हो गई है। याद करो, पीपल जैसे राइटर्स, आर्टिस्ट, नॉर्मल जो पॉपुलेशन थी, आर्मी वगैरह, सब ने मिलके बोल्शेविक्स को क्यों सपोर्ट किया था? बिकॉज वो सोचते थे कि बोल्शेविक पार्टी सोशलिज्म के लिए खड़ी है, सोशलिज्म के लिए काम करेगी। सोशलिज्म क्या? ऑल आर इक्वल इन द सोसाइटी, एंड वो एक चेंज लाना चाहती है, चेंज ऑल्सो चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अब बोल्शेविक्स अपने जो वर्ड से हट के कुछ अलग ही कर रहे थे, जैसे कि ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल कर रहे हैं, सीक्रेट पुलिस है, जो लोग वो क्रिटिसाइज करते हैं उनको पनिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या हो रही थी? ये एक टेंशन क्रिएट कर रही थी रशियन सोसाइटी के अंदर। ओके, पीपल वर बिकमिंग डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी इट वॉज एनकरेजिंग। मतलब लोग बड़े ही कंफ्यूज हो गए थे कि ये पार्टी आई किस एम से थी कि चेंज लेके आएंगे और सोशलिज्म लेके आएंगे सोसाइटी में। लेकिन एट प्रेजेंट जो पार्टी कर रही थी, क्या कर रही थी? इट वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ रशिया। अब उन्होंने सेंसरशिप भी कंट्रोल करनी स्टार्ट कर दी। सेंसरशिप मतलब मैगजीन में, न्यूज़पेपर में क्या कुछ प्रिंट होगा वो बोल्शेविक्स के हिसाब से होगा। ओके, एक तो उन्होंने सीक्रेट पुलिस रखी हुई है, और किनको पनिश करते हैं? जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट बोलते हैं। अब उन्होंने सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट भी ले आए। सो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, हम सोचने लगे हमने इस पार्टी को क्यों सपोर्ट किया था?
because this party was supporting socialism and wanted to bring a change in the Russian society. लेकिन अब ये तो पुराने ही रूलर्स की पाथ पे चल रही है, उनकी तरह ही पूरा पाथ फॉलो कर रही है. Therefore, people now become disillusioned or confused. Okay, so we'll see now the attitude of Bolshevik party plus some other factors will lead to another war in Russia, which will be called as civil war. Okay, so guys, that's it for today's video. सिविल वॉर और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके बाद क्या चेंजेस आए, एंड फाइनली ग्लोबली रशिया की क्या सिचुएशन है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ओके, सो इट्स टाइम टू टर्न अप योर ब्रेन. Guys, basically, Tone Your Brain is the section for you guys to know what you have gained from this video. And the rules are same. You guys need to comment all the questions in the comment section, and this will help you to know what you have gained from this video. So number one question of the day is, name the military committee and who was leading it. You need to name the military committee which was formed during the October Revolution and who was leading the committee. Okay. Then the second question is, what was the result of October Revolution? You guys need to give me the pointer form. Okay, answer in the pointer form. सिर्फ points ही लिखने हैं. Need not to explain the entire revolution here. Okay, and lastly, what were the problems that we have seen that the people of Russia faced after the October Revolution? Again, you need to give me the answer in the pointer form. And that's it for today's video, guys. And if you like my video, please do not hesitate to press in this thumbs up icon, and also like, share and subscribe to my channel Economics Window by Garima Singh, as it will mean a lot to me. Thank you for watching.